A very welcome all of you in today's lecture. And in today's lecture, this is the orientation session, जहाँ पे हम लोग preparation strategy के बारे में discuss करेंगे. But before preparation strategy, I want to discuss multiple things. So the session will be in 2 days, today and tomorrow. Today is the first session, and tomorrow will be the second session. And I'll be discussing multiple things about preparation. What exactly the syllabus is, how to approach preparation, how to start preparation, आपको तैयारी को start कैसे करना चाहिए, what you should keep in your mind while preparing for the examination. Uh, there are a lot of myths about the examination, and that myths are it is a very tough examination. Well, for me, this examination is different. It is not tough. It requires planning and a very good execution, and that works, eventually if you want to get selected. So let's try and understand all the dynamic, and we'll make it work. The first and foremost thing is that you have to be mentally prepared. And I always ask this question. मैं हमेशा पूछता हूँ aspirants से that why civil services? Okay. So what I'll do is that I'll be taking 1 hour in the orientation part, and then I'll take some questions. And tomorrow I'll be discussing about the NCRTs, how to make notes, the newspapers. So these doubts I'll be taking tomorrow. Okay. So that is an orientation 2. पहला सवाल, why civil services? Why do you want to become an IAS officer? Why do you want to get into good government services? And for me, the motivation is very important. Uh, a lot of aspirants during college, during job, they have this thing in their mind where they feel like I should go for this examination. I'll tell you my own journey. I have given 3 UPSC attempts, and in all the attempts I've faced interview, and I was almost there twice, and I missed by few marks. I would not say, I did not make mistakes. I definitely made some mistakes, but I had a very good chance to get into the services. And I made some mistakes which I repented later on, because mistakes हो जाती हैं, कई बार नहीं मालूम होता है. The objective of the session is कि हम ये ensure करें कि आप ये mistake ना करो. For example, choosing the right optional. For example, following a right approach in the beginning. अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और आपका अप्रोच इन द बिगिनिंग इज नॉट करेक्ट, इज नॉट राइट एज एक्सपेक्टेड, देन थिंग्स विल नॉट वर्क. हाउ डू यू स्टार्ट प्रिपरेशन? आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हो या फिर आप कहीं और से स्टार्ट करते हो? सो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर सपोज्ड टू बी आस्क्ड बिफोर यू एक्चुअली गेट इनटू द प्रिपरेशन. तो मेरा पहला क्वेश्चन आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट दैट व्हाई सिविल सर्विसेज. तो व्हाई का है, व्हाट इज योर रीजन? Do you want to become do you want to get into the services because your own personal interest? Every person is different, तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं. कोई कहता है मुझे सिविल सर्विस में इसलिए जाना है because I want to make a change. Would worth it, worth the effort? Some people say I want to get into the services because it provides a lot of opportunities. Yes, definitely it provides a lot of opportunities. Some people want to get into the services because उनको लगता है कि उनको एक सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी मिलती है, उनके रिस्पेक्ट मिलता है, उनको सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलती है. Some people want to get into the job just because of the sheer challenges that job provides. High degree of motivation, challenge. एक टाइम में ऐसा होता है कि मनी ड्राइवर नहीं हो जाता है. And I'll tell you, people, when you start earning money, when you have a decent life, और money एक secondary factor हो जाता है after a time. Let's say you have a fixed income. You have a fixed income, and yeah, that income is coming, and you're able to sustain a decent life. उसके बाद मनी सेकेंडरी हो जाता है, unless until if you want to purchase some you know big house and big cars and lot of other things. But for basic living you don't need so much. You need the basic house, basic income, or once that need is met, then everything becomes secondary. UPSC basically goes beyond that, because the job will ensure कि आपके basics हमेशा life की meet होते हैं. The government will take care of that. Government will give you a lot of facilities, perks, income, facilities, everything. But apart from that, the kind of job you do, you are in the day one से आप leadership position में होते हो. From the day one, you are leading a team. From day one, you are working for the country. Okay. So when you look at these aspects, you understand that UPSC has n number of things, and that is how it should be looked upon. Okay. I personally, I always believe that you know uh,
once you start working for preparation, it is always about uh, just give me a few seconds. Okay, so once you once you're in a job or in preparation, sorry, once you're in a job जहाँ आपके basics of life meet होते हैं, but you can make a difference on ground. जब आप बाहर निकलते हो, there are people who look up to you. When when you sign or something, when you do something, suddenly there's a feeling inside that with your effort these things can happen. Some people have a lot of money, but they can't make any change on the ground. Secondly, the kind of respect you get in society. You could be a billionaire. आप एक बहुत बड़े करोड़पति हो गए. You could be n number of things, but you could be a big businessman with hundred of crores of money, but if you're going to an IRS officer, आप IRS officer के पास मिलने जाते हो and वो आपको वेट कराता है 1 hour, so आपको वेट करना पड़ेगा. That makes that is a kind of a sheer weight that adds to your profile. When you go outside, even there are people with a lot of money. You might not have that amount of money, but they reach out to you, and the kind of respect that you get. तो आप सोचो कि लाइफ में कैसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज या जॉब होंगे जो आपको मौका देता है. वेरी फ्यू. And civil service is one of that job. It will take care of your basics of life without any question mark, but it is much beyond than that. It is about respect, honor, dignity, the canvas जिसमें आप काम करते हो. So all these things matter a lot after a while. So for me, आपके लिए क्या reason है, motivation क्या है? You want to get into the good job, you want to get into a job जहां से आपको respect मिले, people will look up to you, people will know you. So no, that is what it should be there in your mind. आपको अपने लेवल पे पूछना होगा कि मेरा मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, and why civil services for me. So करें in civil services, the first question very important, because क्या होता है जब मोटिवेशन आपका इंटरनल होता है, when the motivation is intrinsic, आपका मोटिवेशन जब इंट्रिंसिक होता है, when it is pure, then the things start working for you. तो आपको ये पूछना होगा कि मेरा मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है. Is it coming from my drive is coming from these aspect, और वो जब प्योर होगा तभी आप सस्टेन कर पाओगे. मेनी टाइम्स एक और बच्चे सवाल मेरे से पूछते हैं कि सर मैं 8 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या. वेल, आई सी यूपीएससी प्रोसेस एज अ मिशन. एक मिशन की तरह है. आप कोई भी काम करते हो, लेट्स से यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, आप बीटेक कर रहे हो या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप ऑन एन एवरेज आप कितना टाइम देते हो. ऑन एन एवरेज आप कॉलेज में जाओगे तो यू हैव अ कॉलेज टाइम. आप 7-8 आवर्स आप मॉर्निंग 9 AM 8 AM से घर निकल जाते हो, एंड यू कम बैक एट 5 PM. तो आप सोचो ना, यू आर इन्वेस्टिंग सम 8 7 8 9 आवर्स. मैं कहता हूँ यूपीएससी को भी ऐसी लो, सी एज अ प्रोसेस जहां पे आपको एवरेज 7-8 आवर्स देने हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 months. तो अगर आप, मैं कहता हूँ 8 आवर्स का भी एवरेज आप टाइम देते हो 6 days a week, और 8 आवर्स में अपर लिमिट कह रहा हूँ, इट कैन बी 6 आवर्स एज वेल, 6 to 7 आवर्स एज वेल. तो अगर आप 6 to 7 आवर्स आप देते हो ऑन एन एवरेज, आई फिर से आप 40 आवर अ वीक देते हो, आप 40 आवर अ वीक देते हो अपने स्टडी पे, एंड आप 6 days पढ़ते हो, 7 day यू टेक अ ब्रेक. आई एम अ फर्म बिलीवर कि आपको पढ़ाई के साथ साथ एक ब्रेक लेना भी जरूरी होता है, आपको रिजुविनेट होना भी जरूरी होता है. सो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज यू ऑल्सो हैव टू लुक ऑन दोज एस्पेक्ट. तो व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू कि आप तैयारी के साथ साथ आप ये भी देखो कि मुझे तैयारी क्यों करनी है, मुझे तैयारी कैसे करनी है, एंड यू सी इट एज अ मिशन और प्रोसेस. ठीक है. तो जैसे कि आपने अगर मैं कहता हूँ 8 आवर, आपने 8 आवर या 7 आवर दिया, यानी 40 आवर वीक दिया. जब 40 आवर्स आप एक वीक में आप अगर आप देते हो बेटा, तो आप सोचो अगर आपके 52 वीक्स हैं और हम 50 वीक्स मान लेते हैं, ठीक है, 2 वीक्स मान लो आपने नहीं पढ़ाई करी, तो यू आर प्रैक्टिकली गिविंग 2000 आवर्स टू द प्रिपरेशन. आप 40 into 50 is 2000. तो 2000 आवर्स अपनी आप स्टडीज को दे रहे हो, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन. इतना टाइम एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड. अगर आप इतना टाइम ईमानदारी से देते हो, आप मेरे से लिख के ले लो दैट इफ यू गिव दिस टाइम एंड एफर्ट विद प्रिपरेशन, आप एक प्रोसेस से अगर एफर्ट को फॉलो करते हो तो चीजें वर्क करेंगी एंड थिंग्स विल वर्क फॉर यू वेरी पॉजिटिवली. सो दैट इज व्हाट द अप्रोच शुड बी. हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कैसे हम प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करके आगे बढ़ाएं. ठीक है. So the first question is why civil services, and then things will start working for you.
दूसरा जो सवाल है, लेट्स अंडरस्टैंड द सिलेबस। आप यूपीएससी के सिलेबस को समझो, ठीक है। यूपीएससी का सिलेबस क्या कहता है? द फर्स्ट स्टेज आपका प्रीलिम एग्जाम होता है, राइट? प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। फिर आपका मेंस एग्जाम होता है, प्रीलिम्स के बाद आप मेंस का एग्जाम देते हो। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, यस। सो 3 स्टेज प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेज इज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप प्रीलिम्स का एग्जाम देते हो। प्रीलिम्स का एग्जाम कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो होता है आपका जनरल स्टडीज होता है, यू कैन सी दिस। पेपर 1 इज जनरल स्टडीज वेर यू स्टडी हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी। और पेपर 2 आपका एप्टीट्यूड होता है। नाउ सम पीपल ऑलवेज आस्क मी कि भी प्रिपरेशन जब यूपीएससी की करते हैं तो ये एग्जाम अलग है बाकी एग्जाम से? यस, एग्जाम इज डिफरेंट विद द लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। यूपीएससी एग्जामिनेशन आप जब तैयारी करते हो तो दिस इज यूपीएससी, और ये बाकी छोटे मोटे दूसरे एग्जाम हो सकते हैं। सो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन प्रॉपरली, आप बाकी एग्जाम को आपको क्रैक करने की बैंडविड्थ बहुत आसानी से बन जाती है। एंड आई गिव यू एग्जांपल। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो अच्छे स्टूडेंट थे, एंड दे कुड नॉट गेट इनटू सर्विसेज। उनका सर्विसेज में नहीं हुआ, बट दे गेट इनटू स्टेट सर्विसेज। वो राजस्थान एडमिटेड सर्विस में चले गए, वो यूपी पीसीएस में चले गए, वो बिहार पीसीएस में सेलेक्ट उनका हो गया, सिलेक्शन हो गया। मेनी ऑफ देम गॉट सिलेक्टेड इनटू रजिस्ट्रार की जॉब, जैसे गवर्नमेंट में बहुत सारी आती है, यानी बहुत सारी अच्छी जो जॉब्स होती हैं उनमें उनका सिलेक्शन हो गया। दैट मींस दे इवेंचुअली गॉट अ गुड गवर्नमेंट जॉब। द क्वेश्चन हियर इज नॉट कि भी हाँ सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं हुआ होगा, बट यूपीएससी प्रिपरेशन ने आपका मोटिवेशन, आपकी एनर्जी, आपका नॉलेज इतना बढ़ा दिया that you know eventually got selected in into some good examination. So if you try to see the GS paper 1, GS paper 1 is about general studies areas. जनरल स्टडीज में सिलेबस डिफाइंड है। अगर आप देखोगे दिस सिलेबस, आप हिस्ट्री पढ़ोगे, यू विल स्टडी ज्योग्राफी, यू स्टडी इंडियन पॉलिटी, यू विल स्टडी इकोनॉमिक्स, यू विल स्टडी एनवायरमेंट, एंड यू विल स्टडी साइंस. So if I say history 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस ये करंट इवेंट को मैं 7 मान लेता हूं, तो आपको 7 एरियाज को तैयार, यू हैव टू प्रिपेयर 7 एरियाज. नाउ इफ यू, अगर आप इनको सिलेबस को देखते हो, व्हाट इज द लेवल? अगेन बेसिक क्वेश्चन कम्स, क्या हमें, बिकॉज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, दीज आर बिग एरियाज, तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए? एंड आई ऑलवेज से टेक 12th क्लास एज अ बेस. आपका जो क्लास 12th का एनसीईआरटी है, दैट शुड बी द बेस. If you are able to develop the NCERT as a base, then preparation will come in your control. Students क्या करते हैं? They do random studies. वो बात नहीं सुनते हैं. After a while, they don't follow the process. I always ask them कि भाई आप NCERT से start करो, start with basics, follow the basics. आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और NCERT ढंग से पढ़ते हो, and just few standard books, things will work for you. बट स्टूडेंट्स क्या होते हैं? टुडे वी लिव इन एज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, कहीं यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कहीं वहां से मिल रहा है, एंड यू लुक फॉर शॉर्टकट्स. नो, यूपीएससी में सबसे बड़ी गलती, द मोस्ट बिगेस्ट kind of problem students make is that they follow the shortcut approach. They don't follow the process, and this is true about 95% of student. आप मेरे से ईमानदारी से, अगर I always say you follow the process and things will work for you. I have always been a student who मैं अपनी बात बताता हूँ. I was in job when I left my when I started preparing, and when I left my job, मेरे पास प्रिपरेशन के लिए I just had around 18 months. और 18 months में मुझे क्या करना था? I had to give 2 prelims. I had just 2 attempts, and in that 2 attempts I had to give 2 prelims and 2 mains. यानी मेरे पास यही ऑप्शन था लास्ट. And when I started, after 4 months I had prelims. यानी I just had 4 months for one. Then moment prelims दिया, mains आ गया. तो फर्स्ट स्टेज के लिए मेरे पास सिर्फ 4 महीने का टाइम था. But I followed the process. I chose a mentor. I reached out to him. For example, I am your mentor today. मैं आपको जो बता रहा हूँ, that is 12 years ago की बात बता रहा हूँ. So when I followed the process, things worked for me. But I was a sincere student. मैंने कोई टारगेट बनाया तो उसको मीट करने के लिए एफर्ट किया. And believe me, I followed the process. मैं ऐसा नहीं कि मैंने I shut myself from the whole world and मैंने 15 घंटे पढ़ाई की, ऐसा नहीं था. I just followed 7-8 hours of average studies, but consistent and regular and disciplined, of course. So that is what is needed. Now let's go with general studies paper 1. तो ये आपके 7 areas आपके जो है सब्जेक्ट के कवर करने हैं.
एंड इफ यू अंडरस्टैंड द एप्टीट्यूड पार्ट जनरल स्टडीज, तो यहाँ बेसिक मैथ्स रीजनिंग आती है, और अगर आप देखोगे तो मैथ्स 10th लेवल तक की आएगी, एंड 10th लेवल में भी डेटा इंटीग्रेशन 10th लेवल का आता है, बेसिक इंग्लिश आती है, कुछ एरियाज में थोड़ा सा टिपिकल होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा एफर्ट करना होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एंड ऑल, बट आई पर्सनली बिलीव दैट अगर आप 45 डेज का आप एक आप स्टडीज का प्लान बनाते हो सीसैट का, सीसैट भी इजीली निकल जाता है. तो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, द सिलेबस इज प्रीटी क्लियर. क्लास के बाद यू कैन आस्क द सिलेबस, माय टीम मेंबर्स विल प्रोवाइड इट टू यू. तो अगर आप सिलेबस की बात करते हो तो सिलेबस इज अबाउट नोइंग इंडिया. इंडिया को जानने का एग्जाम है बेटा. इफ यू आर ट्राइंग टू नो इंडिया, यू आर ट्राइंग टू डेवलप अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस डेवलप करना है. ठीक है, तो आज का मेरा जो वीडियो होगा जहां पे मैं ये बात करूंगा, टुमारो आई विल गो इन डेप्थ ऑफ द प्रिपरेशन पार्ट. ठीक है, तो एवरीबॉडी आज का अटेंड करना, कल का भी अटेंड करना. आफ्टर दैट यू विल गेट अ होलिस्टिक अप्रोच की प्रिपरेशन कैसे करना है और कैसे नहीं करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेज, प्रीलिम्स. दोनों पेपर 1 पेपर 2 बोथ ऑफ 200 मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स एंड 200 मार्क्स. जो प्रीलिम्स पेपर 1 होता है 200 मार्क्स का, इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है. पेपर 2 सीसैट, आपको यहाँ कट ऑफ निकालना होता है. कट ऑफ इज 33%, which means out of 200 30% होता है 67 marks. So you just score 67 marks in paper 2, and based on the marks of paper 1 you clear the prelims. Now prelims, beta, prelims is the most toughest part of the examination. And why it is toughest? Because prelims is one examination जहां पर the competition is stiff, जहां सभी लोग एक एग्जाम को देते हैं, and you prepare for 1 year and then you just have to show your outcome in 2 hours. आपको 2 घंटे में अपना आउटकम दिखाना होता है, and that is where the challenge is. So what I would always suggest each one of you कि भी आप प्रिपरेशन को होलिस्टिकली लो, बट फॉलो अप्रोच की प्रीलिम्स निकालने के लिए मे बी एक अप्रोच चाहिए होगा, मेंस के लिए एक अलग अप्रोच चाहिए होगा. So today I'll discuss about the holistic approach and then we'll go specifically for prelims later on. So what is the first stage? The first stage is the prelims examination objective, and prelims examination is a filtering process. एक filtering process है जहां पे आप it is an elimination round, because उनको for example if I say average 3 to 4 lakh people exam देते हैं, and if so many people are giving, only उनको सिर्फ 3% लोग चाहिए इनके और 4% लोग चाहिए जो मेंस में जाएंगे, because they can't check the papers. यूपीएससी प्रोसेस में आपको बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करने, they want to evaluate you in a very depth way. So when they want to evaluate you in a very in depth process, then in that they will try to know each and everything about you, and that is the main examination. The word is descriptive. तो अगर आप मेंस एग्जाम देखोगे तो मेंस बहुत डिस्क्रिप्टिव होता है, and prelims is just a filtering process. But I always suggest that if you crack the prelims तभी आप मेंस में जाओगे, तो prelims निकालना भी उतना ही जरूरी है. So that is the paper 1 and paper 2. This general studies paper 1, CSAT paper 2. When you clear the prelims, अच्छा इसमें एक चीज और मुझे आपको बताना है. If you try to see the prelims, prelims का कट ऑफ कितना होता है? 107, 116, 105, 98. So if I say prelims cut off, so this cutoff, so 2015 it was 107.34, 2016 it was 116, 2017 it was 105.34, 2018 it was 98, 2019 का भी 98 है. आप देखो ना, you just have to score 50 to 55%, that is the cutoff. If you are able to crack this level, we are going to get selected. Paper, and paper 2 में you just have to get 67 plus marks. आपको 67 marks आ जाएगा, paper 2 निकल जाएगा. But getting 50-55% is decent. It's not an easy thing. इसलिए what is needed that you have to study for, आपको 1 year का time बेटा देना पड़ेगा. People who are in college जिनको 2 years का time है, okay, they can have a different study plan. Syllabus preparation approach same रहेगा. The only thing your study plan will vary.
People who have to give next year, for them study plan will require more effort, and people who are planning maybe in 2022, their study plan will require more relaxed approach. Okay, so that is what the approach should be. So that is the first stage, prelims examination, and then we'll go to the mains examination. जब आप prelims निकालते हो आप mains में जाते हो, and in the mains you have paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, general studies. So in mains में क्या क्या होता है quickly? So essay, 4 GS papers, 2 paper for optional, and there are language. So total there are 9 papers. And in 9 papers, ये जो आप देखोगे तो examination is mostly GS based. Prelims पूरा GS based होता है, paper 2 aptitude होता है, reasoning maths. In mains, essay GS based, 4 GS papers is also GS based. तो यहाँ पे आपके 5 papers GS based होते हैं, and there are 2 papers which are optional subjects. And out of 51 subjects आपको एक object optional लेना होता है. Okay, and then we have language, English and Hindi papers. हिंदी या फिर आपका लैंग्वेज हो सकता है पंजाबी, उड़िया, whatever, और बंगाली, whatever. So English, ये लैंग्वेज पेपर जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है. And these are 7 papers, 1 essay, 4 GS, 2 optional. ये जो 7 papers होते हैं, they are merit based. इनको आपका ये मेरिट में काउंट होता है. Okay, so every paper 7 papers into 250 marks. So बेटा 1750 में आपका मेंस कट ऑफ निकलता है. Okay, so I have to get scores in the mains in these areas. आप यहाँ देखो मेंस कट ऑफ यहाँ दे रखा है. This is mains cut off. This is out of 1750. Okay, so this is the cutoff. और आप देखोगे तो यूपीएससी में anybody's people usually score between 45 to 50% who get selected. आपको इतना स्कोर करना है in the final. और फिर आपका when you clear the mains examination, then you get to the third stage, that is interview stage. So you go to the interview stage, and interview is 275 marks. ये 1750 होता है. So both of them, इनके दोनों के मार्क्स ऐड हो जाते हैं. So 2025. So यहाँ आपका जो स्कोर आता है मेंस प्लस इंटरव्यू, you get 2000. So out of this सिलेक्शन होता है. As I mentioned, 45% से ऊपर. For example, this year Pradeep Singh, who got rank 1, scored 52% marks. तो ये rank 1 का स्कोर है इस साल का. Okay, so that is where it is the target to achieve that. So everybody understood the process of the examination, prelims and mains. Everybody, you can say yes or no. Then I'll proceed further. Okay, fair enough. Let's move. Okay, good. Now, one more question that is always asked, that how many people get selected every year? So I would say the number of people who get selected is average around 900 to 1000 people. So out of 3 lakh to 4 lakh, these many people get selected. यानी मान लो 1000 लोग select होते हैं. So you must be saying that if I have to see the number, in every 300 people who give the exam, 1 people get selected. Now that is right, but remember, इसमें से जो exam देने वाले number of serious aspirants are there, that serious aspirants are very few. They are hardly 40-45,000 people जो serious हैं. तो आपका competition जो है, it is among the serious student. You don't think that okay, everybody who is filling the form is a serious candidate. No, that is not true. People who are filling the form, they might not be serious. Only few people will be serious. ठीक है?
अभी आप देखो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। सो ये प्रीलिम्स का है, आप देखो प्रीलिम्स में कितने कितने मार्क्स आते हैं हर साल। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। सो इफ यू ट्राई टू सी, yes, Yagya beta, I'm going to discuss the strategy only, and I've just completed the information. Now I'll go with the strategy. Now strategy of preparation will have multiple things. आपका strategy preparation में क्या क्या होना चाहिए, and I want to discuss multiple things about the strategy. The first is how to start. Okay, so how to start? What is the first thing that a student should be doing? How to start for civil services preparation? So you might be from background. आप किस background से हो? You might be from economics background. You might be from humanities background. You might be from science background. You might be from commerce background. You might be from law background. It hardly matters. There are a few things which are very important. The first things for starters, you need to start with NCERTs. आपको NCERT से start करना चाहिए. The first principle. The second principle, you need to make sure that you get aware. आप अपना awareness में काम करो. Awareness means start reading newspapers. In the starting, at least for 1.5 months, this should be the only approach. Start reading newspapers, familiarize yourself. मैंने जैसा आपसे कहा, यूपीएससी एग्जाम इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग इन द कंट्री राइट नाउ. इट इज अबाउट अवेयरनेस. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ रिसेंटली government came with new education policy, NEP. So what is new NEP? How does it impact India's education? What are the problems in India's education system? ये NEP कैसे एड्रेस करता है इंडिया एजुकेशन सिस्टम के लैकुनास को या इश्यूज को? ओके, मनु, आई एम गोइंग टू डिस्कस द बुक लिस्ट, एंड मैंने डिटेल में बुक लिस्ट वगैरह डिस्कस करूंगा. यू हैव टू हैव लिटिल पेशेंस. आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द NCERT बुक्स आल्सो. लेट मी कवर द मैक्रो स्ट्रेटजी. So Manu has a question: which books have NCERTs, which standard? So I'm going to give you the list of books which have to be read. Okay, बेटा? So new education policy जैसे है, तो उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए. Similarly, let's say RBI ने कोई, RBI came with the approach for economy. RBI ने कहा कि इन्फ्लेशन को इकोनॉमी में कैसे मैनेज करना है, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, तो वो आपको पता होना चाहिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम विद सम गवर्नमेंट स्कीम्स में आए हैं, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. So that is what न्यूज़पेपर रीडिंग का आपका अवेयरनेस होगा. एंड रिमेंबर व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ये जो अवेयरनेस पार्ट है, ये अवेयरनेस पार्ट हैज टू बी मैक्रो लेवल, ऑल इंडिया लेवल. आप लोकल न्यूज, स्टेट न्यूज मत पढ़ना, आपको मैक्रो लेवल इंडिया में क्या हो रहा है वो जानना है. Because people who are studying in from Tamil Nadu, they might not know what is happening in UP. So this is a common all India exam, so everybody will have to follow national news. Okay, newspapers mein, as I mentioned, national news are important. Okay, Saraswati, I'll clear your doubts. As I mentioned, guys, I'm going to take the doubts in the after 20 minutes. मैं आपके साथ सबके doubts, as I mentioned, ये 2 session है, so don't worry, have little patience. All your doubts will be cleared. कुछ लोग ऐसा लगता है कि उनको बहुत सारा information पता है, good, but let me start with very basic. ठीक है, तो मेरा जो पहला point है कि NCERT से start करना चाहिए. कौन सी NCERT? I'm going to share the list of the NCERTs today itself. Tomorrow I'll be going to discuss how to read the NCERTs. The second is newspaper reading. Newspaper reading बहुत important है प्रिपरेशन के लिए. एंड आपको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है? ऑल इंडिया का मैक्रो न्यूज पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल,
You have to read. Okay, Komal, मैंने इससे preparation, Komal, I have just discussed about the pattern of the examination. ठीक है, सिर्फ पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है, and I have discussed about you know the syllabus. That's all. Okay. So the first is start with NCERTs and awareness. Now जो तीसरा part होना चाहिए, I always say familiarize yourself with syllabus. आपको syllabus पता है कि नहीं है? This is a common mistake student make. Because what to read in newspaper, and I'll share you the syllabus. आपको मैं अभी syllabus share करता हूँ, and that will give you a better picture. Okay. Now syllabus is visible to all of you. Is it visible? Okay. Now let's see the syllabus. So if you see, this is GS paper prelims, and this is the main syllabus. But I'm more concerned about, now read this note 3. Note 3 क्या लिखा हुआ है? This exam is meant to serve as screening test only. What is needed from an aware graduate shall be the intention of the preliminary examination. तो आपका objective है that UPSC wants you to be aware. ठीक है? Now let's go with the syllabus 2. Sorry, main syllabus. Now the paper 1 is essay paper, remember? And essay is a, if you see essay is a paper which is basically wants you to communicate properly. As I always mentioned, UPSC exam is about good communication. आपको अपनी communication की जो ability है वो आपको address करना है. You have to tell the examiner that this is how I know about things, and you have to communicate in a very lucid manner. It is about your thought process development. It is about your personality. It is about your मेरा मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रिपरेशन जो है सिलेक्शन से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप अपनी बात जो भी आपके मन में है वो रख पाते हो कि नहीं रख पाते हो. People who are doing well in the examination, they are able to communicate very properly. So if you can write well, if you can understand well, you should be able to communicate as well, and that is where the importance is. So that is the prelims essay ka paper, GS ka paper. And then if you go, then GS1, if you see GS1, history, geography, culture, society. GS2, governance, constitution, polity, social justice, IR. Paper 3 is technology, economic development, biodiversity. Sorry. And paper 4 is ethics, integrity and aptitude. तो ये आपके जो पेपर का पार्ट है. And then there are 2 optional subjects and there are language paper. तो आपको एक काम करना होगा, all of you, that you all should work and make sure that you are thorough with the syllabus. अगर आप syllabus में आपका command developed है, if you are able to do well in the syllabus, you'll be able to do well. So I always suggest each one of you that you should develop your approach where the syllabus part can be covered properly. Okay. Now just hold on. Now so prelims and mains, common question जो हमेशा बच्चे start करते हैं, that as I mentioned there are 3 approaches. The first is आप start with the NCERTs, but सबसे पहले be familiar with syllabus. आप syllabus को देखो.
The second part is start with NCERTs, and third part is current affairs. अब इनको जब कर लेते हो, when you are able to cover them, parallelly you should start areas. For example, you can start subjects also. आपने NCERTs किया तो NCERTs में आप इकोनॉमी पढ़ोगे, you'll study history, you'll study geography, and you'll study polity. So let's say आपने इकोनॉमी में पॉलिटी बात है, NCERT you start with Indian polity. आपने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया. So Indian polity में you have to cover 9th, 10th, 11th NCERTs. आपको 3 क्लास का NCERT पढ़ना है. So once you're thorough with the 3 class NCERTs, the next objective should be कि आप NCERT के साथ साथ आप क्या करो, आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो. You can follow the standard books which you can read and follow. जैसे मान लो स्टैंडर्ड बुक्स में बताऊंगा, जैसे मान लो पॉलिटी की बात करता हूँ, तो ये तीनों करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू डू लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत. तो अभी लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए NCERTs. You have to be thorough with the NCERTs. Once you're thorough with the NCERTs, go with the standard book. Syllabus, each one of you, I would urge each one of you कि आप लोग syllabus का प्रिंट आउट लो, and wherever your personal space, जहां आप पढ़ाई करते हो, आपका जो पर्सनल स्पेस है, आप वहां पे सिलेबस को रखो, उसको प्रिंट आउट ले लो या अपने फाइल में कहीं देख लो, and you have to read the syllabus every day. If you're able to do that properly, you take it from me, things will start working for you in the next 1 month. Second is current affairs. Newspaper reading is the crux of preparation. अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, then things will never work for you. Many times student they expect कि भी न्यूज़पेपर्स जो हैं मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, स्टार्ट कैसे करना है. I completely understand. Tomorrow मैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करूंगा थोड़ा सा. But I'm more concerned about कि भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ने में आपको हैबिट डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा. Because आपने, let's say so far you have not read newspapers, so whenever you start a new thing, you will have certain degree of challenges and the problems that you face. So accept them, that I'll have certain challenges and issues, but eventually I'll be able to overcome them. तो दो तीन अप्रोच रहेगा. सिलेबस अपने आप को फैमिलाइज करो, सिलेबस का प्रिंट आउट लो, स्टार्ट विद द NCERTs एंड द न्यूज़पेपर रीडिंग, जो करंट अफेयर्स का आपका पार्ट कवर होता है. अगेन वन मोर थिंग, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो क्या न्यूज़पेपर में पढ़ना है. जब आप सिलेबस को समझ जाते हो तो आप न्यूज़पेपर को फिल्टर कर पाते हो. फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपने एक वर्ड पढ़ा, हिस्ट्री में आपने एक टॉपिक पढ़ा, और वो टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री से है, एंड उस मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक कोई आर्टिकल है यूपीएससी में, अरे सॉरी न्यूज़पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है. नाउ दैट विल डिपेंड कि वेदर यू नो मॉडर्न हिस्ट्री में वो सिलेबस का पार्ट है कि नहीं है, एंड फॉर दैट यू नीड टू नो व्हाट मॉडर्न हिस्ट्री कंप्राइज ऑफ. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, मान लो बैंकिंग से बैंकिंग से जुड़ा हुआ कोई न्यूज है, बट वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, एंड फॉर दैट यू हैव टू नो द सिलेबस. सिलेबस में बैंकिंग इकोनॉमिक्स में मेंशन है कि नहीं है. अगर है, दैट मीन दिस इज इंपॉर्टेंट and this has to be read. So that is how you develop a filter system. I always believe preparation, आप कम effort में भी you can crack the examination. There are around 20-25 ऐसा 30% यूपीएससी का सिलेबस है जहां से 75% क्वेश्चन आते हैं. हमें ये फिल्टर करना सीखना होगा. We have to filter this 30% area. बट उसके लिए आपका बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, एंड फॉर दैट NCERT इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो I'll tell a little about the NCERTs and then I'll go to the next level. Now which NCERTs, कौन से NCERT पढ़ना है? 4 सब्जेक्ट के NCERTs पढ़ना है, एंड इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन. ये PDF शेयर हो जाएगा आपके साथ. इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. ठीक है, तो आज मैं सिर्फ लिस्ट बता रहा हूं. टुमारो आई विल टेल हाउ टू रीड NCERTs. अभी हिस्ट्री में है, एंड पीपल हु हैव पेन एंड पेपर यू कैन नोट इट डाउन एज वेल, अगर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. द फर्स्ट इज, हिस्ट्री में हमको बेटा क्लास 12 का NCERT पढ़ना है. ठीक है, और इसमें देखो थीम्स 1, 2, 3 है. थीम्स 1, थीम्स 2 एंड थीम्स 3. थीम 1 इज एंशिएंट हिस्ट्री, थीम 2 इज मिडिवल हिस्ट्री एंड थीम 3 इज मॉडर्न हिस्ट्री. तो ये 3 आपको हिस्ट्री का जो है पार्ट पढ़ना है, ये 3 किताब पढ़ना है. एंड पीपल हु हैव हिस्ट्री बैकग्राउंड, आप सीधा यहीं से स्टार्ट करना. ठीक है, इसके बाद you also have to read the old 3 NCERTs.
Ancient India by R.S. Sharma, Medieval India by Satish Chandra, and Modern India by Bipin Chandra. So ये 3 NCERTs here and 3 NCERTs here. आप अपना स्क्रीनशॉट उन्हें मोबाइल पे ले सकते हो, ये PDF से शेयर होगा. So there are 6 NCERTs that have to be read in history. NCERTs पढ़ने के बाद एक और NCERT है 7th one, ये फाइन आर्ट्स का 7th NCERT आपको पढ़ना होता है बाद में. ये भी आपको, तो ये 6+1 7 NCERTs have to be read. And बेटा ये 7 NCERT आपने ढंग से पढ़ लिया, you believe from me and take it from me that things will going to work for you properly. In fact उसके बाद आपको सिर्फ कुछ स्टैंड बुक्स पढ़नी होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा. So these are 6 to 7 NCERTs that you have read in history. अब मैं पॉलिटी पे आता हूँ. पॉलिटी एंड गवर्नेंस. अभी क्या लिखा हुआ है? गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक जिसे कंट्री को हम लोग रन करते हैं. एंड गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस इज द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट, क्वालिटी ऑफ वर्क डन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, क्वालिटी ऑफ द वर्क. तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, बट गवर्नेंस में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेशन पढ़ते हो. तो गवर्नेंस में गवर्नमेंट स्कीम्स की बातें होंगी, गवर्नेंस में गवर्नमेंट कोई लॉ ला रही है, उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में बातें होंगी. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्टैटिक पार्ट and governance is the application part. So what you have to understand here is that कि हम जब NCERTs पढ़ रहे हैं तो 9th 10th 11th 3 class NCERTs 9th 10th 11th these are very important. And if you are thorough with 3 NCERTs you will familiarize yourself with the polity, Indian polity and constitution, especially class 11th NCERT. Class 11th NCERT is very good and you know every year prelims में आपको डायरेक्टली यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एनसीईआरटी से मिलते हैं. सो थरो रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये 3 एनसीईआरटीज 3 एनसीईआरटीज you have to read Indian polity, and once you've read that then you can go with the standard book called Indian polity by Lakshmikant. आपको इसके बियॉन्ड अभी कुछ नहीं पढ़ना है, दैट इज इट. ठीक है, सो दैट इज सो वी कवर्ड. हमने हिस्ट्री का बताया मैंने, और मैंने भी पॉलिटी का बताया. नाउ आई विल टेल यू अबाउट ज्योग्राफी. नाउ ज्योग्राफी वी हैव 4 एनसीईआरटीज 1 2 3 4. Fundamentals of physical geography, India physical environment, fundamentals of human geography, India economy and people. And there are 4 NCERTs and these are class 11th and 12th NCERT. अच्छा, one more thing remember, NCERTs you have to follow all new NCERTs. आपको जो भी NCERTs follow करनी है, they all are new NCERTs. You don't have to follow old NCERTs. And what is the meaning of new NCERT? New NCERT which means the NCERTs which which are right now used in UPS in the CBSE syllabus. जो अभी जो CBSE syllabus में यूज होते हैं, और ये सारे NCERTs आपको easily ncert.nic.in पे डाउनलोडेबल है. ठीक है, चैप्टर वाइज. बट आपको हम पूरा बुक मेल करेंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम उसका कंसोलिडेटेड बुक बना रखा है हमने, वो आपको हम मेल करेंगे. तो ये आपके एनसीईआरटीज हैं, आपके ज्योग्राफी का, ये आपका हिस्ट्री का पार्ट है, ये पॉलिटी का हो गया, एंड देन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में क्लास 9th 10th एंड 11th 3 एनसीईआरटीज एंड 12th ये 4 एनसीईआरटीज पढ़नी है. इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये 3 एनसीईआरटी प्लस 12th की भी इकोनॉमिक्स पढ़नी है आपको. मेरे जो स्टूडेंट्स हैं दे जस्ट हैव टू रीड द 3 एनसीईआरटीज. उनको सिर्फ 3 एनसीईआरटी पढ़नी होती है. ये जो 4th एनसीईआरटी है क्लास 12th की, वो सिलेबस में ही मैं साथ साथ करवाता हूँ, उसको मैं अलग से नहीं करवाता हूँ. सो यू जस्ट हैव टू रीड 3 एनसीईआरटीज. सो 3 हियर, 3 हियर, 4 हियर and 6 to 7 here. So 7 4 11 11 3 14 14 3 17. So there are 17 NCERTs that have to be followed. ठीक है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो NCERTs पढ़नी है. ये 4 को आपको 3 को 4 भी ले सकते हो बिकॉज ये 4th वाला भी है. तो टोटल 18 NCERTs आपको पढ़नी है. Now question, how many NCERTs are there? How many NCERT books are there in UPSC from class 6 to 12th? More than 40 NCERTs. There are 40 plus NCERTs, but I have to follow only these 18 NCERTs if I'm preparing for the examination. Okay. Am I audible to you guys? Am I audible? Am I audible to all of you? Okay, okay. निखिल, आपके एंड से कोई प्रॉब्लम है बेटा?
देयर इज सम प्रॉब्लम फ्रॉम योर्स एंड, मेरे एंड से आवाज सबको आ रही है? Yes, I'll show. So this is Indian polity and आप सबका स्क्रीनशॉट ले लो, हिस्ट्री का ये स्क्रीनशॉट ले लो. These are 3 NCERTs, 3 ये सारी न्यू वाली हैं and the 3 old NCERTs plus फाइन आर्ट्स 11th NCERT ये भी न्यू है. टोटल 7 NCERTs हिस्ट्री में आपको पढ़नी है. If you have taken screenshot, I'll go to this. In geography, you have to read the 4 NCERTs class 11th and 12th. You can take the screenshot. And then you can go with the class Indian Polity and Governance. ये 3 NCERTs आपको पढ़नी है, 9th, 10th, and 11th. And then you can go with economics, 4 NCERTs, 9th, 10th, 11th, 12th. Okay. So these are the NCERT books जो बेटा आपको पढ़नी है. And if you read these NCERT books properly, you will feel comfortable in UPSC because आपका जो base है वो develop हो जाएगा. 18 books हैं, 9th to 12th की किताबें हैं. These are basic books. They would you would not feel much of a load after you've read the NCERT. 9, 10th are very simple and easy. 11, 12 थोड़ा सा heavy होता है. But since you are doing graduation or you are already graduate, so I don't think so it will take much time. Students जो 2021 में एग्जाम दे रहे हैं, for them they should make sure that next 1.5 months में NCERTs कवर कर लें. Students जो 2022 में एग्जाम दे रहे हैं, they should use next to 3 to 4 months in covering the NCERT. आप अगले 3 to 4 months में NCERT को कवर करिए. And people who are giving exam next year, they should cover it in in the next 1.5 months. So that is what I would suggest. So that completes NCERT. जैसा मैंने डिस्कस किया, प्रिपरेशन अप्रोच में you have to read, you have to familiar with syllabus, you have to start with NCERTs and you have to follow current affair. ठीक है? So I've covered the NCERTs, कौन कौन सा पढ़ना है. And now थोड़ा सा मैं आपको न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ाता हूँ, कैसे न्यूज़पेपर में कैसे पढ़ना चाहिए, what to read and how to read in newspaper, and then I'll go with the basic approach. Okay, so we covered NCERTs, how to start, how NCERTs में क्या क्या पढ़ना है. Tomorrow I'll be telling how to read NCERT, NCERT कैसे पढ़ना है. The second I'm going to tell about little about optionals. Third, I'll tell about how to make notes, how to read newspapers. ठीक है? And basic study plan. आपका basic study plan क्या होना चाहिए? Basic study plan में NCERT से start होना चाहिए. And then after NCERT you can go ahead and start with the newspapers. And थोड़ा सा newspaper के बारे में बताता हूँ. Let's understand the newspaper. So newspaper, which newspaper? Preferably 2 newspapers, The Hindu or Indian Express. In newspapers, what to read? You have to read, as I mentioned, national news. ठीक है, आपको सिर्फ national news पढ़ना है. You don't have to read anything else. आपको national news पे focus करना है. The second would be after national news, editorials, very important part. So in UPSC editorials में usually issues, जो important issues होते हैं उस पे articles होते हैं, उस पे opinions होते हैं, and they help you in analysis and understanding the news. ठीक है? Then you can follow economics news, you can follow social news. Economics news मतलब RBI की कोई पॉलिसी हो गया, गवर्नमेंट का कोई अप्रोच हो गया,
ठीक है, गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी हो गया। सोशल न्यूज में न्यूज ऑन एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स। देन यू हैव टू रीड अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, IR जिसको बोलते हैं, इंडिया एंड नेबर्स। India neighbors, neighbors and maybe organizations also. The next apart from IR would be environment news, environment and climate change. जैसे अभी क्या चल रहा है दिल्ली में, pollution in Delhi, let's say. So air quality index कैसे मेजर होता है, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, why pollution क्यों जाता है, how to counter. So you'll get a lot of news and articles on this, and this have to be read. ठीक है, and then on science and tech. So ये न्यूज आपको पढ़ना है बेटा, and if you properly follow newspaper, you just have to read 4-5 pages. आपको 4-5 पेज ही पढ़ना है, and maybe there are 20-21 pages in the newspaper. ठीक है, so this is what have to be read in the newspaper. Tomorrow मैं आपको newspaper खोल के I'll open a newspaper and I'll properly filter the news which are important. जो भी आपका news important होगा वो मैं newspaper से filter कर, मैं आज का या कल का newspaper I'm going to show it to you in the class itself. And we follow that हम न्यूज़पेपर में कैसे पढ़ना है, फिल्टर क्या पढ़ना है वो मैं फिल्टर करूंगा, and how to read also I'll help you. So that is this is what newspaper में आपको कवर करना है, and that is more than sufficient. ठीक है, so newspaper are the base building. Now question is why newspaper reading? Because UPSC wants you to know about India. आपको इंडिया में क्या चल रहा है, क्योंकि कल को आप लीडरशिप रोल में, tomorrow you have to take decisions, and if you don't know about India, the problems, the challenges, how will you take decisions? And preparation न्यूज़पेपर सबसे important part हो जाता है. In fact 30 to 40% आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, up to 50% भी कह सकते हो, they are linked with newspapers. वो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से नहीं आएंगे, बट लिंक्ड विद न्यूज़पेपर से आएंगे. Okay, you can take a screenshot of that. National news editorials. And one more thing, what not to read, क्या नहीं पढ़ना है. Local news, state news, local news, state news, sports news, entertainment news, and one more thing, पॉलिटिकल न्यूज अवॉइड करना है. एकदम पॉलिटिक्स का न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज भी अवॉइड करना है. इनफैक्ट ये सबसे इजी पार्ट है. राहुल गांधी ने ये कहा, नरेंद्र मोदी ने ये कहा, इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, ये सब पूरा अवॉइड करना है. राइट नाउ इलेक्शंस आर गोइंग ऑन बिहार. यू डोंट हैव टू फॉलो इलेक्शंस कि इलेक्शंस में कौन जीत रहा है, द ट्रेंड्स एंड ऑल, बिकॉज यू विल फाइंड दैट इन न्यूज़पेपर विल बी फिल्ड विद ऑल दैट. दिस इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग, सम पॉलिटिक्स इज हैपनिंग, बट पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिक्स हमेशा होता है. सो यू डोंट हैव टू फॉलो दैट, because newspaper UPSC exam is about selecting students who are apolitical, non political जो होते हैं. आपको कल सिविल सर्वेंट बनोगे तो आपको नॉन पॉलिटिकल रहना पड़ेगा. आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, आपको सपोर्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे, बट यू विल नॉट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स आइडियोलॉजी. So these are to be avoided: local, state, sports, entertainment, and of course the political news. And political news में आपका न्यूज़पेपर बहुत सारा न्यूज़ उसमें कवर होता है, and that can be avoided. मैं कल आपको बताऊंगा कौन कौन सा पॉलिटिकल न्यूज़ है, कैसे अवॉइड करते हैं. ठीक है, so that is what is all about. This part is clear to everybody? Okay, good. ऐसा आपको समझ में आया? Good, good. चलिए, गुड. सो हमको न्यूज़पेपर, हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है. द फर्स्ट स्टेज इज एनसीईआरटीज पढ़ना है. एनसीईआरटीज कौन सी पढ़नी है? आई हैव टोल्ड द लिस्ट. न्यूज़पेपर पढ़ना है. न्यूज़पेपर क्या क्या पढ़ना है? कल मैं टुमारोज सेक्शन वुड बी where I'll be discussing how to read NCERTs,
एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, मैं एनसीईआरटी ओपन करके दिखाऊंगा. एंड सेकंड वुड बी हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स. ठीक है. और अब मैं कुछ क्वेरीज लूंगा एंड देन आई यू कैन आस्क यू क्वेरीज एंड डाउट्स. मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूं एंड इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट आप मेरे से पूछ सकते हो. नेक्स्ट 10 मिनट्स आई विल टेक सम क्वेरीज. मैंने अनम्यूट कर दिया बच्चा आप लोगों को. यू कैन आस्क यू क्वेरीज एंड डाउट्स. Anybody can unmute. If you have any question, you can type your questions also. अपने question type कर सकते हो आप. हेलो सर. Yes, yes, Aswati, tell me. हाँ सर, आप जब प्रीलिम्स के क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बोल रहे थे तो सर आप एक जगह बताया कि आरबीआई के क्या क्या हमको फॉलो करना है, वो एक बार फिर से रिपीट करेंगे? नहीं, वो मैंने ऐसी एग्जांपल दिया था दैट आरबीआई का कोई स्कीम चल रहा है. आरबीआई हैज कम विद सर्टेन बैंकिंग रिफॉर्म मैकेनिज्म. तो वैसा मैं डिस्कस कर रहा था इन जनरल. ओके. So let's say RBI has come with the approach that how to address problems of Indian banking. So वो न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाएगी. ओके. सो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग. ठीक है सरस्वती. और सर मेरे और एक क्वेरी है, और कुछ क्वेरी है, जैसे कि मानिए ये पेपर 3 में लिखा हुआ है सिलेबस के ऊपर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस. अच्छा सर, ये जो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ये तीनों तो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट है. फिर सर इसमें अंतर क्या है सर? एक आपने बताया कि एप्लीकेशन है गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन का और कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक पार्ट है, पर इन तीनों में अंतर क्या है और मतलब डिफरेंस क्या है, कैसे अलग है और कौन सी अलग चीज फॉलो करना है, या फिर क्वेश्चन इन तीनों में अलग कहाँ से आते हैं सर? Polity is a subject. Polity is a subject, and when you study polity, polity is a subject, and when you study polity, the base for studying polity is Indian Constitution. Since every country will have their own polity, हर country का polity अलग-अलग होगा. When you talk about India, we study Indian Constitution. That is, so polity, constitution में Indian Constitution पढ़ेंगे. The third is governance. Governance is the application of the polity and constitution of India in India's perspective. ठीक है बेटा? So that is polity, constitution and governance. Now question कैसे आते हैं? मान लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे फंक्शन करता है. There is a question on that. How Lok Sabha, Rajya Sabha work. So if there's a question on that, so in that situation, it's a question on Constitution of India. But let's say there's a law, कोई government ने law बनाया है, and there's a question on the law itself. So that is not a question on Constitution. That is a question on the governance part, application of law. Okay, so that is the difference. Is that clear? यस सर. Clear हुआ आपका सरस्वती? यस सर. और सर पेपर 2 में एक जगह मेंशन किया गया है सोसाइटी, पेपर 3 में है सोशल जस्टिस. सर इन दोनों में क्या कोई लिंक है या फिर दोनों ही डिफरेंट है? Social justice is about education, government schemes, welfare schemes. उस पे जो क्वेश्चन आता है वो सोशल जस्टिस का पार्ट हो जाता है. वेलफेयर पे स्कीम आ गया, कोई एजुकेशन हो गया, कोई प्रॉब्लम्स इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोशल जस्टिस क्या है, जस्टिस पार्ट पे क्वेश्चन आता है, तो वो गवर्नेंस से लिंक्ड होता है बेसिकली. इंडियन सोसाइटी की भी कुछ सिलेबस मेंशन है, वो कहाँ से पढ़ेंगे? यस यस. इन जीएस पेपर 1. ओके, गुड. सो मैं एक बार आपको शो करता हूँ. जस्ट होल्ड ऑन, आई विल शेयर इट टू यू. सो अभिषेक, ये जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में ये देखिए. सो इंडियन सोसाइटी में वी हैव एनसीईआरटी क्लास 11th एंड क्लास 12th. क्लास 12th में बुक है इंडियन सोसाइटी. वहां से देयर आर फ्यू चैप्टर्स हैव टू बी रेड. आई हैव टू चेक इट, बट आई थिंक देयर आर 3 to 4 चैप्टर्स जो आपको यहाँ पढ़ने होते हैं, एंड देयर आर 1 or 2 चैप्टर्स यहाँ से पढ़ने होते हैं. Here also 2-3 chapters. So you can start social issues, which is nothing but Indian society, from NCERT class 12th. And apart from the NCERT class 12th, Abhishek, you have to follow the news. News से जुड़ा हुआ question काफी आता है. So that is what the focus would be. But
उसके बियॉन्ड फॉर एग्जांपल व्हेन आई टीच आई गो बियॉन्ड एनसीईआरटी. जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो आई टीच इन सोसाइटी, सो आई गो बियॉन्ड तो मैं बहुत डायनेमिक थोड़ा अंदर जाता हूँ, बिकॉज इफ थोड़ा सा डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया तो वो एनसीईआरटी में कवर्ड नहीं है. सो स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए एज अ बेस. उसके बाद मार्केट में कुछ बुक्स अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल इज अ बुक कॉल्ड इन सोसाइटी बाय राम आहूजा, दैट कैन बी फॉलो. तो ये आप बेटा उनको फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. बट इसमें डायनेमिक जो पार्ट है दैट विल ऑलवेज कम फ्रॉम न्यूज़पेपर. ओके. इज इट क्लियर अभिषेक? आपको क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू. हाँ सर, अदर क्वेश्चन वाज दैट सर इसका वेटेज ज्यादा, मतलब कितना इंपॉर्टेंस दे इस सब्जेक्ट को एज पर, मतलब. अभी किसका, इंडियन सोसाइटी का कह रहे हो आप? यस सर. 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर इन द मेंस. जैसे पेपर 1 में है, जैसे पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी है, एंड देयर आर 4-5 क्वेश्चंस यू गेट एवरी ईयर आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस. ओके. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में मैं कल बताऊंगा, बिकॉज अनदर अप्रोच, बिकॉज मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, बिकॉज आज शायद थोड़ा हेवी हो जाता. बट टुमारो आई विल आल्सो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स. सो आई विल बी डिस्कसिंग व्हिच एनसीईआरटीज हैव टू बी रेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्यों है, एंड थर्ड इज द न्यूज़पेपर. और इन कल के बाद आपके बहुत सारे मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. कुछ ऑप्शनल वाले डाउट रहेंगे, बट मोस्टली आपके जीएस बेस्ड प्रिपरेशन डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एवरीबॉडी इन द क्लास राइट नाउ, आपके कोई और भी डाउट्स हैं? यू कैन आस्क मी फर्दर. हाँ अभिषेक, यू हैव फर्दर एनी क्वेश्चंस? Integrated aptitude related GS paper. सॉरी, So how to approach for ethics? अभिषेक एथिक्स पे हम लोग का अलग सेशन होगा, बिकॉज एथिक्स आई कांट टेल यू इन 5 minutes. फॉर दैट यू नीड 1 hour 1.5 hour सेशन स्पेसिफिकली. If you want specifically to know the book on ethics, so there is a book on ethics by Chronicle, that is Lexicon. आप उसको follow करिए. But ethics कैसे पढ़ना है? So there'll be a session around 10th of November by one of our faculty, Manas Srivastava, और उनका 1 घंटे का सेशन होगा. आप वो अटेंड करिए. You will get a deep insight about ethics. Okay? क्योंकि एथिक्स का मॉड्यूल मिड नवंबर में स्टार्ट होगा, और मानस ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, इज इन्वॉल्वड इन टीचिंग ऑलमोस्ट 5-7 years. तो उनका काफी अच्छा है, उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करते हैं मेंस में. चलिए, सो दैट इज ऑल. एनीबॉडी एल्स? आयशा, हाँ पूछो. हाँ सर. यस. हाँ सर, पूछ रही हूँ कि सर जैसे आपने एक स्टैंडर्ड बुक बताया पॉलिटी के लिए, एम लक्ष्मीकांत, तो क्या सर गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन तीनों का लिए ही एम लक्ष्मीकांत का ही बुक है, या फिर ये एक ही किताब है, या फिर 3 किताब है सर? मुझे ये पेपर मतलब समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी यहाँ कवर हो जाता है. गवर्नेंस इज एप्लीकेशन पार्ट विच विल कम फ्रॉम न्यूज़पेपर्स. ओके. इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वहां से कवर हो जाएगा. द गवर्नेंस पार्ट विल हैव टू बी कवर्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर रीडिंग, रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग, एंड बाद में कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स को भी रेफर करना होता है, बट मोस्टली न्यूज़पेपर रीडिंग विल डू. सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग भी करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है. ठीक है. कोमल एंड एशा, आपकी कोई डाउट्स है बेटा? यू कैन आस्क स्पेसिफिक डाउट्स इफ यू हैव. आई होप आपको यू हैव आप लोगों ने मैसेज किया था, तो कोई स्पेसिफिक डाउट है कोमल आपके? आपको डिड यू गेट सम बेसिक अप्रोच हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन? एंड आयशा बेटा, समझ में आया आपको? Because you also had, you messaged me for the doubts. No doubts. Okay, good. समझ में आ गया, right? Good. Fair enough. तो should we close? और किसी को डाउट है बेटा आप पूछ सकते हो. Then we'll close for the day. कल कंटिन्यू करेंगे, because अभी सब कुछ एक दिन में बता दूंगा तो हैवी हो जाएगा. सर. हाँ पूछिए. सर यो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, ये बुलेट के बारे में थोड़ा बताइए ना. इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, आपका IMF हो गया, UNFCC हो गया, UN हो गया, यूनाइटेड नेशंस और उसके बॉडीज हो गए. देन आपका कोई भी न्यूज में चल रहा है, कोई नया ऑर्गेनाइजेशन कोई न्यूज में आ रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. सो दैट इज ऑल. पूरा लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक अगर न्यूज में है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इम्पोर्टेंट हो जाता है. ब्रिक्स बैंक अगर न्यूज में तो ब्रिक्स बैंक इम्पोर्टेंट हो जाता है. So that is international organizations.
मोस्टली वर्ल्ड बैंक, IMF, देन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे सार्क हो गया, एशियान हो गया, और ये कैन से यूरोपियन यूनियन हो गया अगर इंडिया, so anything related with India and the organization internationally, those things become important. तो आपको 1-1.5 साल का एक तो important ones जो हमेशा आप follow कर सकते हो, rest what you can do, you can make a list of important items, important organization which are in news from past 1.5 year, और उनपे फिर उनका importance India's perspective देखो, because there are multiple international organizations, but the organization which which are in news because it has some relation with India, those will be important. Okay, Shashwati? और सर बजट के बारे में थोड़ा बताइए ना कि बजट में क्या क्या पढ़ने, मतलब ये तो सिर्फ एक बुलेट में मेंशन कर दिया गया है, तो पढ़ना क्या है ये समझ में नहीं है। Komal, you have a question, you'll get syllabus PDF. Yes, Komal, you can ask, you'll get the PDF. आप क्लास के बाद you can ask, I'll share it with Priya, she'll mail it to you, she'll send it to you. Okay, उनके पास है, they just ask them for syllabus for prelims and mains. Optional if you specifically want, आप सब्जेक्ट बताना, because there are 51 सब्जेक्ट, आप कौन सा ऑप्शनल का चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है ना, विल शेयर इट यू। निखिल का सवाल है, पढ़ा हुआ रिवीजन कैसे करें, कैसे करते हैं रिवीजन? यू वांट अ स्ट्रैटेजी फॉर रिवीजन? ओके ओके, पढ़ा हुआ रिवीजन कैसे करें? 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है निखिल, while preparing that you have to define a time for for newspaper reading, sorry for revision. तो आप एक टाइम डिफाइन कर दो कि भाई 1 घंटा में डेली रिवीजन करना ही करना है। रिवीजन कैसे करें? देयर आर 2-3 वेज। एक तरीका ये होता है बच्चा से रीड करता है एंड रिवाइज करता है, लॉट ऑफ पीपल राइट एंड रिवाइज, सो व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू दैट इज गुड। नाउ नोट्स छोटे कैसे बनाएं, अनदर क्वेश्चन ऑफ निखिल इज नोट छोटे कैसे बनाएं जो 100 पेजेस में। अब ये भी कोई तरीका, कोई डिफाइंड तरीका तो नहीं है, बट ऑलवेज मेक नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। लेट्स से आपने पावर्टी पढ़ा, तो जब आपने पावर्टी पढ़ा तो पावर्टी में यू मेक अ फ्लो चार्ट जिसमें आपने reasons of causes of poverty, reasons of poverty, types of poverty, problems poor people face, who are poor, then how the poverty can be improved। तो आपने पूरा एक पेज में आपने सारे पॉइंटर्स या फ्लो चार्ट फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में आपने वो लिख लिया, तो इस तरह से नोट बना सकते हो, और वो नोट आपका हैंडी होगा और उसको कैरी करोगे, तो जब आप कोई किताब पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, तो यू कैन गेट द प्रिसाइज नोट्स इन दैट वे। ठीक है निखिल, तो वो कर सकते हो, थोड़ा एफर्ट लगेगा बट इट विल बी, यू कैन कैरी विद देम लेटर ऑन इजीली। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। किसी कोई सवाल आप लोग का? शिवानी, यू हैव एनी क्वेश्चन बेटा? आई थिंक यू मस्ट, याज्ञा, आई होप यू हैड सम क्वेश्चंस। नो सर। डाउट क्लियर हुआ आपका? यस सर। ओके ओके, फेयर इनफ। चलो, सो सर शुड आई गवर्नमेंट क्लोज फॉर द डे? बजटिंग, कल हम कंटिन्यू करेंगे। सर गवर्नमेंट हाँ, बजटिंग के किसका ऊपर सवाल कुछ था? बता दीजिए। क्या क्या बताऊं बजटिंग के ऊपर? सर कैसे बजटिंग में सवाल मैं आते हैं, क्लास लेता हूँ and कैसे सवाल आते हैं सर, थोड़ा बता दीजिए ना, क्योंकि सिलेबस देख कर तो बहुत कुछ समझ ऊपर से जा रहा है सर के। गवर्नमेंट बजटिंग में आप ऐसा करो, क्लास 12 का एनसीईआरटी में चैप्टर है उसको पढ़ लो, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, तो उसको आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, लेकिन वो अपडेटेड नहीं है, थोड़ा ओल्ड है। और आपको बजट ऑफ इंडिया जो बजट पास हुआ था, budget.nic.in, वो आपको, तो एनसीईआरटी जो क्लास 12 का पढ़ोगे तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। और क्लास 12 का आई थिंक चैप्टर 4 या 5 है, चेक कर लेना, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी। और उसके बाद आप बजट 2021 जो फरवरी में आया था, budget.nic.india budget.nic.in, वो वहां से बजट का डॉक्यूमेंट आप देख के उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, गवर्नमेंट ने क्या बताया है, वेलफेयर स्कीम्स एंड ऑल, प्रपोजल है बजट का। और तो वहां से क्वेश्चन, और फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ गवर्नमेंट बजटिंग का, देखो कैसा कैसा क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में, मेंस में, पास्ट 10 ईयर्स पे, ठीक है, बिकॉज बजटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एंड मैं खुद, मुझे 3-4 दिन लगता है पढ़ाने में बजट, मुझे 8 घंटे लगते हैं बजट कंप्लीट करने में, तो 2 मिनट में 5 मिनट में कैसे बताऊं सरस्वती, ठीक है ना।
Sir, I have one doubt. Okay, okay. Sir, I want to know about that after prelims there is something paper like English or Hindi. So what is the criteria for that? Like we have to just pass that exam. Yes, you have to score 25%. 25% only, sir. Yes, yes. And after that we are eligible. It's a qualifying examination. Sorry? After that we are going to eligible. Yes, for mains के लिए eligible होता है. कोमल का सवाल है, I want to ask all these topics will be covered. Yes, yes, कोमल, everything will be covered. Don't worry. Syllabus word by word will be covered. शिवानी का सवाल है, I want to know about essay writing. शिवानी, बेटा essay writing पे, essay writing is a very detailed thing. और 2 मिनट में बताना बहुत मुश्किल है, बट आई थोड़ा सा पैटर्न बताया तो मैं ऐसे के बारे में कैसे ऐसे आता है. Okay, sir. Okay. Getting it. Just hold on, just hold on. So essay 50 marks. Three hours. So you have to write 2 essays. 1 essay, 2 essay in 3 hours, and for each essay you get 1.5 hour. ठीक है, तो ये 2 essay बेटा आपको लिखने होते हैं. And topics mainly of the essays will be from the जो current news चल रहा है. The topic could be the social issues can be there, economics issues can be there, general philosophical topic होते हैं. Let's say essay आ जाएगा joy of living, तो उसको मान लो ऐसे आ सकता है. तो आपको इन दोनों ऐसे में 4 टॉपिक्स यहाँ मिलते हैं, and you get 4 topics here, and you have to choose one from here and one from here. There are section 1 and section 2, section A and section B. ठीक है शिवानी, तो बेटा आपको 2 ऐसे जो है लिखने पड़ते हैं, 125 मार्क्स ईच. तो ये 125 मार्क्स, 125 मार्क्स. ठीक है, ऐसे पे अलग से बेटा सेशन होगा, एंड देन यू नो आई विल बी डिस्कसिंग. ठीक है, ऐसे स्ट्रेटजी, ऐसे राइटिंग एंड ऑल वो बाद में. कोमल का सवाल है, सर प्रीलिम्स दोनों का. हाँ बेटा, प्रीलिम्स के जो दोनों एग्जाम एक ही दिन होते हैं. फॉर एग्जांपल द टाइम इज फ्रॉम 9 to 11 पेपर 1 एंड फ्रॉम 2:30 to 4:30 पेपर 2. ठीक है, मेंस के एग्जाम नहीं, मेंस के एग्जाम जो होते हैं, देयर आर 9 पेपर्स एंड हर दिन 2 एग्जाम होते हैं, 2 एग्जाम्स. सो इन 4.5 डेज आपका मतलब 4 दिन आपका 2 पेपर्स होंगे. एंड सो पेपर 1 होता है वो 9 to 12 एंड पेपर 2 इज फ्रॉम 2 to 5 PM. दैट इज अ मेंस एग्जाम. ठीक है, so that is all for today guys. Thank you very much. कल मिलते हैं फिर से at 6:30 and we'll take. आप एक बार सिलेबस को फॉलो कर लो, सिलेबस देख लो एंड रीड कर लो, एंड whatever doubts I'll take them tomorrow. चलिए, God bless you. Take care बेटा.